आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक एंटोनिया लेवोसियर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट है। एंटोनिया लेवोसियर 1743 to 1794, फ्रेंच साइंटिस्ट, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, सस्टेनेबल contribution in the field of chemistry, biology and economics. Nomenclature of oxygen and hydrogen showed that the matter combined with oxygen during combustion. उन्होंने ही बताया है कि जब कोई भी मैटर कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से तो कंबशन होगा, धुआं निकलेगा. Was the first to use a accurate weight technique to weight the reactants and the product in the chemical reaction. So यही एंटोनिया लेवोसियर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का एक्यूरेट वेट लिया था. इन्होंने टेक्निक बताई थी. डिस्कवर दैट वाटर इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंटोनिया लेवोसियर ने ही बताया कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना है. असाइन द सिस्टमेटिक नेम्स टू द कंपाउंड्स सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेट एंड सल्फाइड. ऑथर ऑफ द फर्स्ट बुक ऑन द मॉडर्न केमिस्ट्री. स्टडी द एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, phosphorus, mercury, zinc and sulfur. First writer of the law of conservation of mass in the chemical reaction. So एंटोनियो लेवोसियर ही फर्स्ट राइटर थे जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल रिएक्शन में बताई है. तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड का एक टॉपिक वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन पढ़ने वाले हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को कैसे वेरीफाई किया गया. सो स्टार्ट करते हैं. मैनी कंपाउंड्स कैन बी मेड बाय डिफरेंट मेथड्स. अलग अलग कंपाउंड्स अलग अलग मेथड से बनते हैं. फॉर एग्जांपल 2 सैम्पल्स ऑफ कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड CuO were obtained, one by decomposition of copper carbonate CuCO3. यानी जो CuO है वो ऑब्टेन हुआ है जब कॉपर कार्बोनेट को हमने डिकम्पोजिशन प्रोसेस की है. एंड अनदर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट CuNO3 whole twice. From this of the 2 examples, a mass of 8 gram of copper oxide was taken and each was treated independently with the hydrogen gas. Both gave 6.4 gram of copper and 1.8 gram of water molecules. Let us see how this verification of law of constant proportion. The reaction of copper oxide with hydrogen yielded to 2 known substances, namely the compound water and the element copper. It is known that in the compound water, it means H2O, the elements water, hydrogen and oxygen are in the proportion 1:8 by weight. This means that in 9 gram of water, there are 8 grams of element ऑक्सीजन. यानी अगर 9 ग्राम ऑफ वाटर लिया है तो उसमें 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रहेंगे. Therefore 1.8 gram of water contains 8 into 1.8 divided by 9 is equals to 1.6 gram of oxygen. This oxygen has come from 8 gram of copper oxide. This means that 8 gram of both the samples of copper oxide contain 6.4 gram of copper and 1.6 gram of oxygen, and the proportion by weight of copper and the oxygen is in 6:4:1.6, and that is 4.4:1. This experiment shows that the proportion by weight of the constituent element in the different samples
of a compound is constant. Now let us see what the expected proportion by weight of the constituent element of the copper oxide would be from its known molecular formula CuO. To find out this, we need to know the atomic mass of the element. The atomic masses of Cu and O are 63.5 and 16 respectively. This means that the proportion by weight of the constituent element Cu and O in the compound CuO is 63.5:16, which is 3.968:1 or approximately 4:1. The experimental value of the proportion by weight of the constituent elements match with the expected proportion calculated from the molecular formula. Thus, the law of constant proportion is verified. आज हम लोग इस वीडियो में एटम्स, साइज, मास एंड वैलेंसी पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो स्टार्ट करते हैं. कैन यू रिकॉल से. फर्स्ट, फ्रॉम विच एक्सपेरिमेंट वॉज इट डिस्कवर्ड दैट द एटम्स हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर एंड व्हेन. कौन सा एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हुआ है कि एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और कब. एंड व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ एन एटम एंड व्हाट आर दे मेड अप ऑफ. एटम के दो पार्ट्स होते तो वो कौन से दो पार्ट्स है और वो दो पार्ट्स किससे मिलकर बने हैं. वी हैव लर्न दैट एट द सेंटर ऑफ एटम इज द न्यूक्लियस एंड दैट देयर आर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. The electrons are negatively charged elementary particles, while the elementary particles that make up the nucleus are positively charged protons. So जो electrons है वो negatively charged elements है, लेकिन जो protons है वो positively charged है. And electrical neutral, और वहाँ पर electrical neutral एक न्यूरॉन रहता है. So let us look at the image of an atom obtained with the field of an ion microscope. The size of an atom is determined by its radius. The atomic radius of an isolated atom is at the distance between the nucleus of an atom and the outermost orbit. Atomic size is expressed in the nanometers. So atomic size को हम express करते हैं नैनोमीटर में. सो 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 1/10⁹ मीटर के. इट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर. सो अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ एन एटम बता रखी है. एटॉमिक साइज इन मीटर. एन एग्जाम्पल, फर्स्ट इज हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम की साइज है 10⁻⁻10. वाटर मॉलिक्यूल की साइज है 10⁻⁹. हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की साइज है 10⁻⁸. सो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक द मास ऑफ एन एटम पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस एंड ड्यू टू द प्रोटॉन्स p एंड द न्यूट्रॉन्स इन इट. यानी किसी भी एटम का जो मास होता है इसके न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है. द नंबर p + n इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक मास नंबर. यानी जब हम प्रोटॉन्स और न्यूरॉन्स को ऐड कर देंगे एटॉमिक न्यूक्लियस में तो बन जाएगा एटॉमिक मास नंबर. प्रोटॉन्स एंड न्यूरॉन्स आर टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियॉन. जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को साथ में मिला देंगे तो वो
न्यूक्लियॉन्स बन जाएंगे। An atom is very very tiny. एटम की साइज बहुत ही छोटी होती है। Then how do we determine its mass? तो हम उसका मास कैसे बता सकते हैं? Scientists too struggle with this question. Scientists उस questions को फाइंड आउट करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। It was not possible for the scientists of 19th century to measure the atomic mass accurately. 19th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट थे उन लोगों के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि वो एटॉमिक मास को एक्यूरेटली मेज़र कर सके। सो देयरफॉर द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मास ऑफ एन एटम वॉज पुट फोर्थ। तो फिर उन्होंने रिलेटिव मास ऑफ एन एटम का कंसेप्ट यूज़ किया। ऑफ रेफरेंस एटम वॉज रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेसिंग the relative mass of an atom. The hydrogen atom, being the lightest, was initially chosen as the reference atom, and the relative mass of hydrogen atom, which has only one proton in its nucleus and was expected as 1. Therefore, the magnitude of relative atomic mass of the various atoms, because of the equal to the atomic mass number, which is equals to P is equals to P plus n. तो आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं। यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे केमिस्ट्री में उन सभी के कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स है। सो हाउ इज एन एलिमेंट इंडिकेटेड इन केमिस्ट्री? कैसे एलिमेंट को हम इंडिकेट करते हैं केमिस्ट्री में? राइट डाउन द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट यू नो। आपको जितने सिंबल्स पता है वो लिखिए। राइट डाउन द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स सच एज द एंटीमनी, आयरन, गोल्ड, मर्क्यूरी, लीड एंड सोडियम। फिर ये जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उनके सिंबल्स लिखने हैं। डाल्टन यूज सर्टेन साइंस रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स। डाल्टन्स ने कुछ स्पेसिफिक साइंस यूज़ किए जिससे कि वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सके। फॉर एग्जाम्पल दिस साइन इज फॉर हाइड्रोजन, सी and the circle for copper. Today we use the symbol determined by the IUPAC. IUPAC it means होता है International Union of Pure and Applied Chemistry. These are the official names and the symbols and are used all over the world. ये जो official names है पूरे वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं। The current method of choosing the chemical symbols is based on the method invented by the Berzelius. According to this method, the symbol of an element is either the first letter or the first and the second or the another specific letter in its name. तो इस मेथड के अकॉर्डिंग या तो उस एलिमेंट का फर्स्ट लेटर या तो फिर फर्स्ट और सेकेंड लेटर या तो फिर कोई स्पेसिफिक लेटर जो उसके नाम में आते हैं उस एलिमेंट के वो हम चूज़ कर सकते हैं एज अ सिंबल। आउट ऑफ 2 लेटर्स द फर्स्ट इज़ अ कैपिटल एंड सेकेंड इज़ द स्मॉल। अगर हम 2 लेटर्स लेते हैं तो उसमें 2 लेटर में जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैपिटल रहेगा और सेकेंड वाला स्मॉल लेना है। आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं। एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स के क्या मॉलिक्यूल्स है। स्टार्ट करते हैं। एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स सच एज हीलियम, नियॉन हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे कि कुछ एलिमेंट्स है, कुछ एटम्स है जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, इनके जो एटम्स है आउटरमोस्ट शेल में वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। इट मीन्स दैट दिस एलिमेंट्स आर इन द मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट्स। इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट्स है उनके
ये जो एलिमेंट्स है वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट में है। समटाइम्स 2 or more atoms of an element combine to form the molecule of that element। कभी तो ऐसा होता है कि किसी एलिमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिल जाते हैं जिससे कि उसका मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। सच मॉलिक्यूल्स आर इन द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट। और कुछ एलिमेंट्स पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट्स में भी प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर इन द डायटॉमिक मॉलिक्यूल स्टेट सच एज O2 and 2 रिस्पेक्टिवली। और कुछ एलिमेंट्स है जो कि डायटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट में भी प्रेजेंट है, जैसे कि O2 है, N2 है, CO2 है, H2 है। So when atoms of the different elements combine with each other, the molecule of compound are formed। जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन करेंगे एक साथ तो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, यानी उस कंपाउंड का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इन अदर वर्ड्स कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स। यानी दूसरे वर्ड्स में बोले तो कंपाउंड फॉर्म्ड होगा तब उसमें अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में केमिकल अट्रैक्शन रहेगा। Make a list of elements in the monoatomic and in the diatomic molecular state। So हमको लिस्ट बनानी है एलिमेंट्स की जो कि मोनोएटॉमिक हो और जो डायटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट्स में हो। सो यू हैव टू फाइंड दिस। वैलेंसी रेडिकल, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक मॉलिक्यूलर मास एंड द कंसेप्ट ऑफ मोल पढ़ने वाले हैं। फर्स्टली हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास जो कि क्लास 9 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। The molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a single molecule of that substance। किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो एटॉमिक मासेस का सम होता है, यानी जितने भी उस मॉलिक्यूल्स में यानी जितने भी उस कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स है हम उन सबको ऐड कर देंगे। लाइक एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट डेल्टन। एटॉमिक मासेस की तरह मॉलिक्यूलर मासेस को भी हम एक्सप्रेस करेंगे डेल्टन में यानी यू में। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना है H2O हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा 1 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा 16। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 H2 एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 है। ऑक्सीजन के एटॉमिक मास सिर्फ 1 है तो 16 × 1 तो 2 + 16 = 18। H2O का मॉलिक्यूलर मास आया है 18। यहाँ पर आपको एटॉमिक मासेस दे रखे हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज दे रखे हैं। आपको ये प्रिपेयर करना है, एटॉमिक मासेस निकालने। यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं। इट मीन्स एटॉमिक मास दे रखा है हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12, K2, पोटेशियम का 39, सल्फर का 32, कैल्शियम का 40, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, मैग्नीशियम का 24 एंड एल्यूमिनियम का 27। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है वो दे रखे हैं NaCl, MgCl2, KNO3, H2O2, AlCl3, CaOH2, MgO, H2SO4, HNO3 एंड NaOH। आपको इन सभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है।
आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक मोल पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। वेट द सिंगल ग्रेन ऑफ तुअर दाल, मसूर दाल, चना दाल ऑन अ बैलेंस। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? यानी सिंगल ग्रेन को, एक दाने को हमको वेट करना है। वेट 10 ग्राम ऑफ तुअर दाल, मसूर दाल, चना दाल and count the number of dal grains of each kind in the weight proportion। फिर आपको 10 ग्राम वेट करना है और काउंट करना है कि तुअर दाल में कितने पार्टिकल्स आए, मसूर दाल में कितने आए, चना दाल में कितने आए। इज़ द नंबर द सेम इन ईच प्रपोर्शन और डिफरेंट? फिर आपको बताना है कि सभी ग्रेन्स का जो नंबर है वो सेम आए हैं या डिफरेंट आए हैं। नेक्स्ट, ड्रॉ अ लाइन स्केच ऑन द पेपर printed by pasting the dal grains in the sequence such as tuar, masoor and the bengal gram. You will need equal number of dal grains of the three kinds. Count the number and therefore reduce the number of grams of tuar dal, masoor dal, chana dal required for painting the picture. So you have to follow up the steps. The next is when elements and compound take part in the chemical reaction. It is the atoms and the molecules that react with each other. There is necessary to know that number of their atoms and molecules. जब कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड केमिकल रिएक्शन का हिस्सा बन जाता है तो उसके अंदर जो एटम्स है, जो मॉलिक्यूल रिएक्ट करे एक दूसरे के साथ, हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। However, while carrying out the chemical reaction, it is convenient to measure out the quantity that can be handled instead of counting the number of atoms. The concept of mole is useful for this purpose. So जब भी हम काउंट करेंगे, उनको मेज़र करेंगे एक सिंगल क्वांटिटी को, तो वहाँ पर मोल का कंसेप्ट बहुत ही यूज़फुल रहेगा। A mole is a quantity of substance whose mass in gram is equals to the magnitude of the molecular mass of the substance in daltons. So मोल एक ऐसी क्वांटिटी सब्सटेंस की जिसमें किसी भी ग्राम का मास जो है वो इक्वल रहेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन डाल्टन के। यानी मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम is equals to the molecular mass of a substance. Thus, the molecular mass of oxygen is 32 U and therefore 32 gram of oxygen is 1 mole of oxygen. The molecular weight of water is 18 U, therefore 18 gram of water make 1 mole of water. 1 mole of compound is the mass of the substance in the gram equal in the magnitude its molecular mass, and the SI unit is mole. The number of moles of a substance N is equals to mass of a substance in gram and mass of a molecular mass of a substance. I hope बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। And if you have any query and any doubt related to this video, then comment in comment section. Thank you. Have a nice day.